वहाँ थे पारस डोगरा, डोमेस्टिक लेजेंड, युद्धवीर सिंह एंड ये अब्दुल समद, वो सब लोग थे। तो वहाँ उनको बॉलिंग डाला। अब्दुल समद कैसा है भाई? बिकॉज आईपीएल में तो अभी रिसेंट भी ये सीजन वैसे हार्ड हिटिंग तो अच्छा है उसका, पावर हिटिंग वगैरह। माजे का तो कोई हाथ नहीं डालता अंदर नेट्स में। वहाँ देखा तो सामने दूसरे मुंबई का ड्रेसिंग रूम था। वहाँ दिस गाय यशस्वी जायसवाल, he was doing some taping on his ankle and something like that. So then when I met him I was like भैया मतलब जायसवाल भाई आप जानते हो ये आपके, तो then he was like हाँ आर्यन ना, तेरे याद आ गया. So he remembered, he clicked जायसवाल। instantly, yeah. तो then he's like what are you doing here? Like भैया वो JNK के उधर बॉलिंग डाल के अभी खत्म हुआ है, नहीं मैं अभी पैडअप कर रहा हूँ, तो 10 मिनट में आ जा, इनको दिल से बॉलिंग डालनी है। तो वहाँ मैंने अच्छे से डाली, बहुत अच्छे से डाली, मतलब वो मेरे को खेल रहे थे। देन ही कम अप्स टू मी, देन ही वाज लाइक कि यार तू अच्छा बॉलिंग डालता है यार, तो आई विल कॉल यू नेक्स्ट टाइम आल्सो। तो ऐसा कभी हुआ है क्या, रिंकू सिंह वाला इंसिडेंट आ गया, भैया बैठ दे दो आया क्या कभी? मेरे को दिल से लगा था जब पृथ्वी शॉ के साथ सेशन था ना, तो प्रैक्टिस खत्म हुआ, मैंने तो यूजुअली व्हाट आई डू इज देन आई गो एंड आस्क अबाउट माय बॉलिंग का कुछ फीडबैक। had couple of more than one, more right? than like 3-4 सेशन किए, तीन फिर चार ना? 5 सेशन किए। सो देन इन द थर्ड फोर्थ सेशन तो मैं चल के आता था, अरे कैसा है आर्यन, तो आई वाज वो आपने ये वाला देखा क्या, ऑस्ट्रेलिया और ये लास्ट बॉल पे विकेट आया उस्मान ख्वाजा का, हाँ पूरा 11 प्लेयर पिच के उधर खड़े रहेगा और सामने तो वो नया प्लेयर था यार, सैम कॉन्स्टेंस। हाँ सैम कॉन्शियस, करेक्ट। सब लोग 11 के 11 बुमराह ऐसे गुस्से में। कमेंट्स को कैसे भूल सकते हैं यार? He said ना कि in sport there is nothing more satisfying than seeing a big crowd go silent on the beginning. और वो एक्चुअली हुआ ही उसके स्पेल में, कोहली को आउट किया, कोहली का विकेट के बाद पूरा स्टेडियम ऐसे हो गया, पूरा साइलेंट। Back onto the stumps, and this is a massive blow. Well, Aryan, welcome to Pod Spectrum. थैंक यू। It's a pleasure to have you, and since I guess we know each other since childhood now. Yeah, probably 10-12 years, more than that actually, more than at least 13 years. So basically since school days we know how passionate you are about sports. Actually we are passionate about sports. True. And have played also multiple sports. But the thing is your background, and even today you are playing competitive cricket. Correct. So could you tell the audience about your background, especially in cricket? So cricket is something that I started at the age of, let's say, 13. Yeah. And that it started purely because my father used to wake up early and go for his practice. Nice. So he used to play with all his buddies. तो उनसे देख के वो मुझे उठा के लेके आते थे. He used to take me there. So you used to be the spectator. Yeah, I know. I used to just do fielding. Oh. Like वो लोग बॉल मारते थे, मैं भागता था, मैं बॉल पकड़ता था. सही है. और तब था कि लेदर बॉल लग जाएगी, तो I used to not play. It used to worry you. Yeah. No. My father used to feel कि लग जाएगा, तो अभी let just ठीक है तू फील्डिंग कर. There's no need of batting, bowling. And so I started like that. And then slowly I started bowling. फिर dad made me join in one academy. So I started playing there. तो वहाँ से क्या कहते हैं, मैंने प्रॉपर पैड्स डाल के बैटिंग करी, और फिर इट स्टार्टेड कि अब मैं then I used to be more regular with my father for practices. Earlier I used to hate waking up early with, dad used to take me up कि चल अब प्रैक्टिस पे सुबह 6 बजे. But then that's how it started. My father pushing me, and then it just वो एक addiction जैसा था कि खेलना है. Okay, and also was there any particular game or player who always dragged you into the game? My dad, मेरे डैड ने ही पूरा क्या कहते हैं लेके गए. उनको शौक था, ये वो अपने कॉलेज की टीम के कैप्टन थे. Okay. तो वहाँ से what was his role in the sport? वो प्योर बैट्समैन थे. Then later on then he started with कि मैं चलो bowling भी डालता हूँ. तो now he is an all-rounder. That's how even I turned up being an all-rounder only. So he was also into pace bowling or he was into spin?
his main forte was his batting. उनका batting was something कि चलो. Yep, Then he started with pace bowling. pace bowling. Yeah, medium pace, not Medium that quick. एक वो हम लोग में कहते हैं कि टप्पे पे बॉल डाल देते हैं Hmm. कि ठीक है धीरे बट स्टंप तक बॉल जाती है वैसे थोड़ा इफेक्टिव रहना चाहिए. इफेक्टिव बट एक्सपीरियंस आ जाता है ना आप इतने साल से हम्म. खेलते हो ना आपको पता है भले धीरे भी डाल रहा हो बट मुझे डालनी है वेयर द राइट एरिया था वेयर टू बॉल थोड़ा So वो that's what he मसल does. मेमोरी में भी आ जाता है. हाँ नाउ Yes, I वो उनके लिए इट्स दिस वेरी मसल मेमोरी थिंग Okay, I wanted to ask you this later, but do you all now also play together? Nice. मतलब अभी भी साथ में खेलते हैं अभी भी इवन इफ आई मैं दोस्तों के साथ लेट्स से अगर एक इंडोर सेशन बुक करता हूँ Okay. कि तो वो मेरे सिर पे खड़े रहेंगे फोन लेके खड़े रहेंगे समझो कुछ रिकॉर्ड करना है Hmm. वो मेरे सिर पे खड़े रहेंगे कि और हम लोग मैचेस भी बहुत सारे साथ में खेलते हैं सही. लास्ट सीजन हमारा एक पार्टनरशिप हुआ कुछ 100 रन का वो कुछ मेरे 50-60 थे डैड के 30-40 रन थे बट डैड ने किए थे वो 30 रन समझो 60-65 बॉल में मैंने वो 50-60 रन करे थे 20-30 बॉल में कितना 20 ओवर का 20 गेम था? वो था 40 ओवर्स का 40 और मैं जल्दी आउट हो गया मजे की बात वो है मैं 20th और 25th ओवर में मैं आउट होके आ गया 15 ओवर में डैड को चीयर करो डैड ने लास्ट बॉल तक मैच खेला सही है. हाँ तो That's really क्या बोलते हैं? Like it's a great experience. You playing with your dad. अरे by the way ऐसा कभी हुआ है क्या? You're a bowler, right? हाँ Your dad hits. He has hit some couple of boundaries or something नहीं when नहीं, you're नहीं bowling a चलो spell. वो मैच हमने कभी आमने सामने नहीं खेला ना आमने सामने नहीं नहीं खेला है. खेला नहीं कभी बात हुआ है क्या ऐसा घर पे पापा मैं आपको आउट करूंगा यार योर डैड इज लाइक तेरे हाँ को 6 छक्के मारूंगा. वो जब छोटा था ना मैं तो तब आई यूज्ड टू फील के यार डैड का विकेट लेना है लेना है लेना है फिर जब जैसे भी आप बड़े हो गए उनका एज डिटोरिएट करते जाता है और आप और स्ट्रांग बन जाते हो फिर हाँ. आप और जोर से डालते हो फिर That's a good उनका point. हैंड आई कोऑर्डिनेशन और थोड़ा वीक होता है वीक होता है वीक You होता will have a edge over there. Yeah. इसलिए that's तो इसीलिए फिर Well थोड़ा said. वो हो जाता बट फिर भी इट इज डिफिकल्ट राइट नाउ आल्सो आई कैन से टेकिंग माय फादर्स विकेट इज but he is playing also at this age. It's हाँ, a हाँ, हाँ. very good thing. And you said कि he batted till the last Last ball. not even the last over, last ball. लास्ट बॉल अब अगर मैं उनको पता चल जाए कि अभी सिचुएशन ऐसा है कि चलो मैच ड्रॉ करनी है Hmm. तो देन ही विल बी आउट देयर बीइंग लाइक पुजारा लेट्स से चेतेश्वर पुजारा समझ लो Good द example. वॉल जैसे Good example. Also, who's more enthusiastic? You or him? Dad, definitely Dad, dad. right? Dad will wake up at 5:45 for practice. If I tell him ना कि ऐसे ही जिम करने के लिए उठो 6 बजे, Yes. he won't wake up. But if I tell him that we are going for a practice, तो practice के लिए उठ जाएंगे 6 बजे. So you make sure he doesn't skip his workout every week. I do Or every tell day. him मैं उनको थोड़ा थोड़ा बीच में बोलते रहता हूँ. But अभी क्या उनको क्रिकेट खेलना है ना for that longevity, he does his training. So yes, so you're like अरे पप्पा अगर क्रिकेट और खेलने गए तो तो वर्कआउट जिम तो करना पड़ेगा थोड़ा Good तो point. करना पड़ेगा एंड इवन ऐसे पोस्ट 50 नाउ ही इज क्रॉसिंग 50 दिस ईयर तो वो उसके बाद यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग व्हिच यू नो जस्ट फॉर द मेंटेनेंस वर्क मसल लॉस नहीं होना चाहिए. Very well said. Also, the thing as I mentioned, multiple sports. One of them was taekwondo. हाँ How was that experience? वो तो पहला प्यार है पहला प्यार. माय फर्स्ट स्पोर्ट मेरा सबसे पहला स्पोर्ट जो मेरे डैड मॉम ने मेरे को एनरोल किया है वो था taekwondo. I started playing at the age of 6 or 7. I played for good 6 years. Then I stopped because then I shifted to cricket. Like see, taekwondo, even taekwondo का कैसा है कि it teaches you patience वगैरह and discipline. Yeah. तो कैसा है कि with me कैसा था, I was too at a certain point I was too aggressive, very aggressive. छोटी छोटी बात पर चिढ़ता था. So there taekwondo helped me a lot. And मेरे mom dad ने भी वही enrollment का सोचा. But for you, was it something like the aggression part or what? कि mom dad were like नहीं self defense के लिए will enroll him. डैड ने मॉम ने एनरोल इसलिए किया प्योरली बिकॉज कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे एट द एज ऑफ 6. एट द एज ऑफ 6 वो टाइम पे ना आपको कोई लेदर बॉल से क्रिकेट नहीं खिलाता था. कोई एकेडमी में भी आपको है ना आपको वो सर बोलते थे कि नहीं अभी एनरोल मत करो और 1-2 साल रुक जाओ. They won't take a chance. नाउ द थिंग इज डिफरेंट. अभी 4 साल का बच्चा भी आप
वीडियो देखोगे तो सीजन बॉल से खेल रहा है, एग्जैक्ट तब वो टाइम पे नहीं था, बट तो यार बट फिर we रील्स had का to ऑल्सो put यू कांट से ना कि वो सीजन है बिकॉज वो वीडियो में तो लेदर बॉल तो दिखता है ना यार, पता हाँ। चलता है, तो वो उसीलिए वो उनने क्या कहते हैं, उनने मेरे को ये स्पोर्ट में डाला जो घर के नजदीक भी हो और वो बहाने आप That एक worked अच्छा well. सेल्फ डिफेंस भी सीख लेते हो एट दैट एज Exactly. व्हिच इज It's नेसेसरी. very important because see like I would draw some parallels over here. Like taekwondo में वो सिखाते भी गिरते कैसे. Like if you fall also, make sure you fall in a certain way जहाँ पर ज़्यादा इंजरी या फिर कुछ बॉडी को डैमेज ना हो. राइट, And cricket में also fielding में it plays a good इट role. प्लेज अ गुड रोल. Because when you're fielding also ऐसे ऐसे catches पकड़ते हो certain बरोबर. movements you attempt, injuries वहाँ पर भी हो सकता है. So can you draw the parallels over there? To be honest, me being a fast bowler speaking, मेरे को lower body injuries are very something that ऐसे ही हो सकती है. पता नहीं एक बॉल लगता है आपको होने के लिए, but because I have a good foundation from taekwondo is purely your lower body kicking and all. Exactly. So your hamstring and all is super flexible. At that time I used to do a complete this thing split. सो उसकी वजह से इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कि अभी तक ऐसे क्या कुछ मेजर इंजरी मुझे लोअर बॉडी का हैमस्ट्रिंग टेयर नहीं हुआ या abductors ग्रॉइन कुछ नहीं गया, यू नो. सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ द इंजरी पार्ट इज समथिंग कि थोड़ा बच गया है. Yes. यू आपको पता नहीं होगा, यू हर्ड दिस एसएमसी कोच टॉकिंग अबाउट ऋषभ पंत ऑन हिज जिम्नास्टिक स्किल्स. यू आप देखते हो उसको मैच में वो Yeah, वो यहाँ से वहाँ अरे गुलाटियां अभी तो मारता है, सेंचुरी मार के कार्टव्हील करता है. कार्टव्हील करता है. वो जिम्नास्टिक्स करता था, उसकी वजह से वो इतना स्ट्रांग है और इतना फ्लेक्सिबल है कि उसको मैचेस में जो इंजरी होती है ना, चलो आपको बॉल लग गई वैसी इंजरी होगी, हाँ. बट कीपिंग करते हो कुछ वो बहुत रेयर होता है, प्योरली बिकॉज वो आपका पहले का जो ये रहता है फाउंडेशन वो इतना That's स्ट्रांग हो गया also. जिम्नास्टिक्स या टाइकोंडो से Hmm. कि वो थोड़ा बेनिफिट है. चलो now since you mentioned Rishabh Pant and in the current Indian team he's one of my favorites. And kudos to the guy after having a horrific accident in the late 2022. क्या ही comeback यार, phenomenal. The Crazy, guy crazy. ऐसा यार मतलब नी इंजरी वगैरह ऐसा लोगों का लाइफ चेंज हो जाता है. बंदा आके फिर भी वही एक्रोबैटिक्स करता है. एंड एज आई मेंशन्ड करेक्ट. अभी तो सेंचुरी मार के कार्टव्हील कार्टव्हील वगैरह करता चालू है. किया है. कूडोज. बात तो सही है, बट यू नो आई टेल यू वन थिंग. चलो वो कमबैक जो किया उसने, यप. उसमें आप दूसरे, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हिज डेडिकेशन एंड विल पावर 100%. कि टू गेट अप आई हैव टू प्ले अगेन, Yep. आई हैव टू प्ले अगेन. दैट इज तो सबसे पैरामाउंट. फिर आपको बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं बचा सकते इफ दैट विल पावर इज नॉट देयर. एग्जैक्टली. बट अभी आप देखोगे उसको कितना बड़ा सपोर्ट एसोसिएशन बीसीसीआई ने किया. They sent him to NCA where there is all the rehab, बेस्ट. recovery, best, you know, your sessions are being monitored by the best SNCs in the world. तो उसके बाद आप एक साल में रिकवर, यही अगर एक नॉर्मल प्लेयर को होता, Normal इवन अ बंदा डोमेस्टिक प्लेयर को ये इस लेवल का एक्सीडेंट होता था ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू कम बैक लाइक दिस. या या. सो फर्स्ट आई That's एग्री, a नो fact. डाउट कि That's a भाई fact. उसका विल पावर जो तगड़ा है वो पंजाबियों का होता भी है थोड़ा, कि वो विल पावर एकदम पंजाबी तगड़ा है कि होता है. वो ही इज फ्रॉम वो ही ना इज फ्रॉम वो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल. और वही वो ही रीजन से, एंड ही इज अ पंजाबी ओनली ना. मेरे को So- नहीं पता है, चले बस. तो बिकॉज ऑफ दैट वो एक अंदर से ग्रिट होता ही है ऑफ गेटिंग अप एंड प्लेइंग अगेन. बट वो देन है. उसको यार सपोर्ट इतना भी Yes, मिला वो भी है. कि वो प्लेयर को मिलना भी चाहिए. एग्जैक्टली. किया भी है उसकी वजह also. से वो कमबैक करना उसके लिए बहुत जल्दी हो गया, एक साल में, एक डेढ़ साल And में. also to be honest, जो like Pant IPL also he has had a good contract in the past also. Not only the 27 crores now, even in the past, Delhi Capitals used to have like 15 crore plus contract. Naturally, with that also, he can afford it. Yeah, but to a normal player, even a domestic player, it's Impossible. very very difficult. It is very difficult. आपको Easily 3 years तो जाएगा ही. जाएगा यार. Yes. Now coming back to Taekwondo, you also mentioned कि at a point you were done with cricket. You joined Taekwondo again, and it reignited you to get back. What was that journey?
So that thing happened, let's say around 2-3 years back, 2-3 साल पहले की बात है. क्या हो गया? There was some personal thing that happened, and I got so You want to frustrated share? with it. It was a very this thing, yeah, kiddish thing. Yeah, but I took that very seriously. मतलब, We all make mistakes. yeah, we all are make humans. mistakes. The attachment was bad actually. Yeah. So then that happened, and post that I just couldn't make out कि यार अब मैं क्रिकेट खेलूं कि नहीं खेलूं. एक तो क्या होता है पता है, सब साथ में होता है ना, आपसे हैंडल नहीं होता. अगर ये वो टाइम पे क्या हो रहा था, I wasn't getting much runs, wickets नहीं हो रहे थे. I wasn't performing also, frankly. With that, this thing happened. So वो हो गया कि अभी नहीं खेलना, छोड़ो यार, क्या कर रहे हैं. वैसे भी Cricket बैंड खेल बजी के, है और हाँ. ये भी ऐड ऑन हो गया. अब नहीं खेलना, छोड़ो. तो फिर देन वो पहले से बचपन से आदत था कि डैड ने बोला था स्पोर्ट्स तो छोड़ना नहीं है लाइफ में, कोई भी कुछ भी खेल, बेसिक से बेसिक गेम खेल, कुछ बट भी खेलना खेल. है. तो फिर आई वाज लाइक कि यार लेट्स जस्ट टेक अ फ्यू मंथ्स break from cricket and let's just get back to taekwondo and let's continue that one belt that was remaining and just make it You stopped at red one. red one. And then from there I started again from white belt till black. Also now since you only mentioned that you had to start from Zero. white belt, and taekwondo के time you enrolled when you were 6 Six. years. Definitely अभी at this point of time you are enrolling as a, let's say 3 years back, you must be 18 19 year old with other 6-year-olds. How was that experience and how it humbled you? See, that thing is completely normal for me, for a sports person also. Yeah. अभी मैं बॉलिंग डाल रहा हूँ, सामने कोई बच्चा बैटिंग कर रहा है, देखा उसने मुझे बहुत अच्छा कवर ड्राइव मार दिया, फिर आपको कैसा लगता है कि यार वो 15 साल के लड़के ने तुझे अच्छा कवर ड्राइव मार दिया ना, बट यू लर्न समथिंग कि यार इसको The game humbles. you. So then I was very much okay with that 6-year kid also teaching me, because I was completely से एकदम zero था. And also since naturally you are doing it after so many years, तो ऐसा भी हुआ रहेगा कि they are doing it every day, they will definitely they are knowing things, and you might have gone up and asked to them also. ऐसा भी हुआ रहेगा. ऐसा हो गया क्योंकि because then I was much more comfortable with the 6-year-old. Yes, naturally. हाँ, क्योंकि अब मुझे उसके साथ बात भी करनी थी, उसको वो भी करना था. दैट इज व्हाट taekwondo disciplines you, it teaches you. वो अभी करने का. आपको जूनियर, वो अभी ऑफिशियली आपका सीनियर है, आप पहले अगर खेल रहे होते तो मे वो बी आपका, आउटसाइड द क्लास वो जूनियर है लाइफ में, बट ऐसे इधर सीनियर है, बेल्ट से भी आपके ऊपर है. So you have to bow him, then you start के यार, and वो क्या कहते हैं, even he was giving so much of respect to me. मैं भी उसको, मैं वो छोटे बच्चे को भी मैं रिस्पेक्ट देके बात कर रहा था, तो उससे सीखना इज वेरी गुड. Also I truly believe कि अगर सामने वाला स्पोर्ट्स पर्सन है truly, like बहुत लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, but if the person really admires sport, वो भी काफी सामने वाले जूनियर्स के साथ भी रिस्पेक्टफुल ही रहेगा. ऐसे नहीं कि अरे बच्चा आ गया यार इसको, या फिर अभी ये नया है कच्चा नींबू, ऐसे नहीं. वो सामने से जाएगा, उसको गाइड करेगा. ऐसा होता है, गेम है. इवन इफ लाइक यू आर अ फास्ट बॉलर, ऐसा हुआ है कि काफी ऑफ टीममेट्स माइट हैव ड्रॉप्ड कैचेस, बट यू वोंट गो एंड येल अप टू देम. यू विल बी लाइक कोई नहीं, यू ट्राइड योर बेस्ट. होता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही है स्पोर्ट, एंड इफ यू डू दैट नेचुरली वो टीम में खराब एनवायरनमेंट होता है और उसके भी माइंड में बैठ जाएगा. करेक्ट. और वो उसके माइंड में बैठता है ना, बाकी का रिमेनिंग गेम है ना, वो खुद से मेरी वजह से उसका गेम वो खराब होएगा कि अब वो ध्यान नहीं दे पाएगा, वो खुद को क्वेश्चन करेगा. अब वो एक कैच छोड़ने का था ना, एनी व्हिच ही इज सुपर अलर्टेड नाउ, ही इज सुपर अलर्ट विद द गेम नाउ. तो अब वो एनी व्हिच, अब उसके कैच दूसरा छोड़ने के चांसेस बहुत कम ही होंगे. वापस वो मिस्टेक तो करेगा. सर रेयर पॉसिबिलिटी. हाँ, तो अब आप उसको डांट के गालियां दे के, ठीक है, आप यूजुअली व्हाट वी डू इज मैच के बाद गाली दो, गुस्सा करो कि तेरी वजह से मैच हार गए, ठीक है, उसका कैसे तुम मैच के बीच में मत स्पॉइल करो. व्हाटएवर यू वांट टू से इट पोस्ट द गेम. ऑल्सो जितना मैंने खेला है
आई हैव नोटिस्ड अगर बंदा अटेम्प्ट दे सकता था कैच करने का, अगर वो नहीं करता है वो ज्यादा अनोइंग होता है। बस कैच लेने के टाइम तो बंदा एफर्ट तो डाल रहा है एटलीस्ट, बरोबर बरोबर है। तू भाग भी नहीं रहा है, कर सकता है, बट जस्ट फॉर द रीजन कि अरे धूप है या फिर ऐसे है, तो दैट डजंट मेक सेंस। कभी कभी जेन्युइनली होता है कि Genuinely धूप होता होती है। है, आँख में नहीं Yes, दिखता yes. है, नहीं नहीं, दिखता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी, देयर इज अ हाँ। पॉसिबिलिटी, बट द पर्सन वाज लाइक अरे टू लेट, अरे नहीं इतना नहीं, ऐसे करके सामने कुछ बहाना बना के बोल दूंगा ऐसे, देयर इट गेट्स अ बिट। नहीं, बट नाउ इट डिपेंड्स व्हाट लेवल यू आर आल्सो प्लेइंग ना। हाँ अभी वो ये तो है। ना, आप अगर आप एक अच्छे लेवल पे खेलते हो, एक डिवीजन पे खेलते हो, अच्छे क्लब में खेलते हो या जो भी है, तो उधर ये होने के चांसेस है ना, कैच ड्रॉप होने के तो हर जगह है, बट Exactly. ऐसा रीजन ये वो होना बहुत लाइक कम अगर है। सुपर कॉम्पिटिटिव लाइक विच यू आर प्लेइंग देयर, उधर बहुत कम है, क्योंकि उधर उधर कम सबको है। मालूम है कि द हाँ। मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लेस, और वहां पर अगर आपने किया तो फिर और यू माइट बी इसमें डोर्स विल गेट शट। इसमें मजे का बात तो ये, आपका एक कैच ड्रॉप, समझो मैं बॉलिंग डाल रहा हूँ, किसी ने मेरा कैच मेरा छोड़ दिया, मेरी एक विकेट चली गई, मेरे चांसेस ऑफ गेटिंग पिक्ड क्या पता उसके जैसे वो हो गया। अभी जो स्कोर शीट देख रहे हैं उस पे तो लिखा नहीं है ना कि मेरी बॉलिंग में एक कैच ड्रॉप इतना हुआ कैच है, ड्रॉप हुआ है, उसने एग्जैक्टली। क्या देखा, खाली 2 विकेट लिए, अरे हम्म। 3-4 नहीं लिए। अब उसको जो देख रहा है, जो भी सिलेक्टर होगा, समझो वो मैच देखने नहीं आया, उसने खाली स्कोर शीट के बेस पे लिया है कि भाई ये प्लेयर है, इसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे यार इसकी बॉलिंग में 2 कैच ड्रॉप हो गए थे तो उसके 4 विकेट हो जाते थे। एग्जैक्ट। तो ये लेवल पे क्या होता है, अगर आप कैच छोड़ते हो ना, आपको पहला थॉट ये भी आता है कि चलो आपका खुद का तो आप डांट खाओगे, हो गया। बट अब ये अगर ये बंदे ने अगर आज विकेट अच्छे नहीं लिए ना, तो ये भी आके मुझे और भड़के, भाई तेरी वजह से अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो देख लेना। तेरा ऑब्वियस नेचुरली आ ही जाएगा आ कि जाता यार है। अभी स्कोर शीट में तो नहीं आने हाँ, वाला है। सिलेक्शन मैचेस में वही होता है, आप अगर किसी के बॉलिंग में वो करो ना, तो ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आता है। वो तो है। लाइक चलो ना, अभी कोचेस का क्या रोल रहा है, कोचेस मेंटर्स, कोचेस एंड मेंटर्स तो आई फील हाउ आर दे आर वेरी फ्रेंडली लाइक, नाउ। सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक अभी लो लेवल्स में देखते हैं हाँ कोई कोचेस आ जाए, जस्ट ऐसे 2-3 बार सिखा दिया तो आ जाता है, हाँ मैं कोच हूँ करके, हाँ, बट एट दैट लेवल यू हैव प्रॉपर कोचिंग सेटअप, राइट। एंड उनका कैसा रोल है, आई एम डैम श्योर कि दे विल नॉट टीच यू कि बेसिक बैट कैसा उठाने का है, दे विल मोरली मतलब मेंटल कंडीशनिंग वगैरह देगा, राइट? मेंटल कंडीशनिंग एज वेल, इवन द बेसिक्स ऑल्सो ना। कभी कभार तो अगर आप समझो कुछ मिस्टेक करो, एक पे एक आउट हो रहे हो ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन, कि भाई अब बैट कैसे पकड़ रहे हो, क्या हो रहा है, क्या पता कुछ आप थोड़ा हैंडल ऐसे पकड़ रहे हो जिसके से बैट ज्यादा ओपन हो रहा है, उसके से आपका एज लग रहा है, तो वो भी होता है। बट मेंटोर्स एंड कोचेस अभी एट दिस टाइम, यू नो, दे आर मोर फॉर द मेंटल थिंग, कि यार आपको क्या मेंटली गेम कैसे प्ले करना है, कैसे खेलना है, एंड दे आर मोर ओवर देयर फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो। आई फील कि यार यू कैन जस्ट गो अप एंड टॉक टू देम। पहले के टाइम पे ऐसा था कि आप डरते थे, नाउ वी टॉक टू आवर कोचेस, एकदम क्लीन चिट बातें होती है हमारे भी, ये सर नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है यार, कूल। you talk your heart out. Now there is my one of the biggest inspiration and even mentor is my Yogesh sir. ओके। So he's the one who got me into SNC. So earlier he's a SNC, so Strength he's and on next conditioning. level only, but so humble, so grounded. उनको मतलब मैं उनके सामने ऐसे बात करता हूँ खड़े रह के, हेलो सर, मतलब That's the respect. हाँ, that's the respect, and even my family also respects him so much. Same as my Aditya sir. So they all are someone के जो बहुत ज़्यादा qualified है, और उनकी बातें ना, मैं अगर उनने बोल दिया तो I have to do it. Like they tell me you have to do this, I will do it. So that's Very the amount of respect and role they play in my life, कि उनकी एक बात पे मैं वो कर सकता हूँ. These are the guys at the end of the day, they make you better, not हाँ, only in हाँ, the हाँ. sport, as a human As a being as human well. being also, and I can go up to them and talk to them about anything and everything Yes. surrounding to field. Well, I want to get back in. I want to talk about the details about regarding strength and conditioning. But before that, I just thought of throwing this question to you. Like as we mentioned regarding the coaches,
let's talk about the leadership group, captains. So now if you're playing a particular game, okay, अभी उसमें कैप्टन है एंड ऑल्सो नेचुरली कोच का भी एक से रहता है एंड यू आर द बॉलर, यू वांट अ पर्टिकुलर फील्ड. कभी ऐसा हुआ है, मच हुआ है कि दे आर लाइक नहीं ये फील्ड नहीं देंगे या कुछ, और दे आर लाइक कि चल It your depends upon the captain and the coach का thought also. अब कोई अभी मैचेस में क्या होता है कि पहले हम हर्डल करते एक, उसमें कोई कैप्टन ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं यू कैन कम अप टू मी एंड टॉक कि आपको क्या फील्ड बिंदास. चाहिए, बिंदास जो चाहिए वो मैं लगा के दूंगा. कोई होता है कि ये यू हैव टू स्टिक टू माय प्लान, दिस इज द प्लान दैट आई एम गिविंग यू एंड दिस इज द फील्ड दैट आई एम सेटिंग एंड यू हैव टू बोल समवेयर लाइक दिस, समवेयर लाइक दैट कि भाई अब मैंने तुझे प्लान दे दिया है, ये फील्ड से ऐसे बॉलिंग डालनी है. तो आप उसमें खुद से कुछ करने होगे तो रन खाओगे, तो आपको फिर उसका सुनना है. और उसमें क्या होता है कभी कभार आपको फायदा भी मिलता है क्योंकि वो कैप्टन बना है तो कोई ऐसे ही और नहीं वो बना. पहले से खेल रहा है, वो खुद घिसा है. तो वो जब कैप्टन बना है तो वो ऐसे ही नहीं बना, तो उसे पता है कि यार मेरे को क्या प्लान करना है. हाँ, अगर आपने 1-2 ओवर ट्राई किया कि उसके प्लान से नहीं हुए, फिर आप जाके फिर से उसके बाद फिर आप आर्ग्यू करोगे भाई तेरे प्लान से चल रहा था कुछ नहीं हो रहा है. बट देयर आर टू टाइप्स के. एक होता है कि तुम जो बोलो वो करते हैं, फिर तुम्हारा नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ. एक होता है जो पहले मैं बताता हूँ और करो, नहीं हुआ तो तुम जो बोलोगे वैसे. Which one you feel is better? फिर I'll share my opinion. I would say the one who gives you freedom is obviously better. You know कि Yes. वो आपका थॉट प्रोसेस भी देखता है कि तुम क्या सोच के कर रहे हो. फिर नहीं हुआ तो वो कैप्टन है आके, उसका जॉब है आके Exactly. आपको बता देगा कि भाई तू जो प्लान कर रहे हो नहीं काम कर रहा है, अब तू ये सुन और इससे देख तुझे विकेट मिल रही है क्या. Yes. Also like as you mentioned कि अगर फ्रीडम रहता है तो आई फील कि वो बेटर ही है, बिकॉज एंड इफ द गाय इज कॉन्फिडेंट बंदा है, वो उसको खुद का वो जस्ट माइंड इज क्लियर कि हाँ मेरे को ये चाहिए, आई विल एग्जीक्यूट इट. करेक्ट. इन केस अगर नया रूकी बंदा है या फिर थोड़ा सा शाय बंदा है, उस डाउट वो थोड़ा डर है, उसको प्रेशर है, उधर अगर कैप्टन आके बोलेगा कि आई विल गाइड यू और वैसे करके, देन वंस यू फील फ्री, ऐसे कुछ भी वो बहुत परफेक्ट ब्लेंड हो जाता है. बट टू बी ऑनेस्ट एक कैप्टन होता है ना, वो कभी भी 11 प्लेयर ना 10 प्लेयर जो चुनेगा ना, वो कॉन्फिडेंट प्लेयर होंगे ना तो उसको पहले चुनेगा ओवर टैलेंटेड या ओवर स्किल्ड या ऐसे. पहले कॉन्फिडेंट बंदे को पहले बेटर रहता है. दैट्स व्हाट आई थिंक कि यार मैं अगर समझो इफ आई एम द कैप्टन, मैं 10 प्लेयर वो लेता हूँ ना कि जो कॉन्फिडेंट है, जो मेरे को मेरे पास आके बोलते हैं कि मेरे को खेलना, मैं इसकी विकेट लेके दूंगा देखो. और वो एक ऐसा रहता भी है ना, फाइटिंग स्पिरिट रहता है ग्रुप में. रहता है. तो यू नीड समवन हु इज, you need a player who is more confident as compared to more talented. Exactly. You need a confident player. Because anywhere, not only in cricket, कहाँ पर भी देखो, any profession, a confident guy is 100 times better than a guy who keeps on doubting himself. Correct. मैं कर सकता हूँ, मेरे को नहीं मालूम, आप बताओ मैं करता हूँ, वो सेंस नहीं बनता. स्किल अच्छा रहेगा नो डाउट, बट कॉन्फिडेंट वाला बंदा उसको अगर मार भी खाएगा वो, तो he'll be willing कि हाँ चल मैं जाके कॉन्फिडेंट बंदा है जो खुद से उठ सकता है फिर से. You don't need anyone to pick you up. Exactly. Confident player is 100 times better than, that's what. Yeah, what do you feel? Ideal mentality क्या होना चाहिए of a bowler, batter, basically any player in the game? See, mentality should always be that. मेरे पे आ रहा है इसी मैं दब रहा हूँ इसलिए. मेंटालिटी इज कि आप खेलने जा रहे हो ना, आपसे बड़ा कोई नहीं है, बट दैट डजंट कम आउट ऑफ द ईगो. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, देयर इज अ स्लिम डिफरेंस. हाँ, अभी आप देखोगे ना सामने की टीम, अरे यार ये प्लेयर खेल रहे हैं तो आप डर जाते हो, तो आपका माइंडसेट खराब होता है. बट आप ठीक है ना, मैं वो कोई भी हो, मेरे से बड़ा नहीं है प्लेयर, वो आएगा बॉलिंग में, मैं देखता हूँ मैं कैसे बैटिंग करता हूँ फिर. तो यू शुड हैव वन माइंडसेट कि यार मेरे से बेटर कोई नहीं है. एंड सेकेंडली if you talk about a particular thing, pace bowler, a bit of aggression, you know, वो एक नेचुरली एक पेस बॉलर में आता है. हम लोग में ना सब लोग कहते हैं पेस बॉलर का दिमाग है ना घुटने में रहता है, उसका इधर होता ही नहीं है.
पेस बॉलर क्या होते हैं पता है? पेस बॉलर ऐसे नहीं बन सकते, थोड़े पागल होने चाहिए। बैट्समैन को होना चाहिए पेशेंट, टेम्परामेंट वाला माइंडसेट होना चाहिए, एकदम काम, कंपोज्ड। और True. कैप्टन होना चाहिए इन दोनों के बीच में। आई वुड से कि जो स्पिनर्स रहते हैं ना, दे आर मोर ऑफ A वो very नर्डी गाइस. the players who play chess na, they are the ones who are spinner. You Chahal see is good. Chahal, Ashwin, they are very Ashwin. smart. They are super smart. They are street smart. Street smart players are the one who play who Best are spinners. spin bowlers. And they are the nerds of the game. Yeah. कि they are very much कि हर डिटेल ऐसा करने का है वैसा करना है. They are very good in over that. Pacers yes, वो एक रहना चाहिए. एक रहना चाहिए. अंदर होना चाहिए, थोड़ा गुस्सा होना चाहिए. गुस्सा रहना चाहिए. हाँ, बट वो गुस्सा तुम्हें टैकल कर रहा है तो बट एक होना चाहिए कि तूने मुझे चौका मारा, ठीक है, अगला बॉल मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ. Like बुमराह का माइंडसेट इज वेरी गुड ओवर देयर. नो डाउट वर्ल्ड क्लास, बट फिर भी माइंडसेट जो है, यू सी हिम, ही इज वेरी, क्या बोलते हैं, He is the opposite of when we talk about aggression. But when he takes wicket also, you he is see him very he is calm. aggressive. But he is aggressive when वो आपने ये वाला देखा क्या? ऑस्ट्रेलिया और ये लास्ट बॉल पे विकेट आया उस्मान ख्वाजा का. हाँ हाँ. पूरा 11 प्लेयर पिच के उधर खड़े रहेगा और सामने तो वो नया प्लेयर था यार. सैम कॉन्स्टेंस. हाँ, सैम कॉन्स्टेंस, करेक्ट. सब लोग 11 के 11, बुमराह ऐसे गुस्से में खड़ा उसको देख रहा है. इसलिए he There is is also aggression. He's There is aggressive. aggression. But he is very much, he's not that vulnerable. I हाँ, would he's say. not that vulnerable. vulnerable. But aggression Aggression है. बुमराह पेस has. बॉलर में होता ही है यार. If naturally होता है, वरना तुम पेस बॉलर नहीं हो. पूरा aggression तो सिराज में. शोएब अख्तर. शोएब अख्तर. शोएब अख्तर से He's बड़ा also- अग्रेशन मैंने कोई प्लेयर में ही नहीं देखा. जितने मैंने उसके क्लिप्स देखे या मैचेस देखे थे ना जब मैं छोटा था, वो तो ऐसा लगता था विकेट लेके अभी टेक ऑफ करेगा अभी. उसका सेलिब्रेशन भी था ना कुछ उसका ऐसा, हाथ वाथ फुल celebration. ऐसे उड़ के. and the way he bowls, the way he talks also, if you watch his clips also on Very confident. very confident and something कि उसको लगता है मेरे से बड़ा फास्ट बॉलर ही कोई नहीं आज. Hmm. अभी भी post retirement also he talks like that. Yes. मतलब वो दिखता है प्लेयर का. वो रहना भी चाहिए, बट ज्यादा भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए बस. बट शोएब अख्तर यार, he had his very good run. Aussies also, Australians भी कितने, One of the best mindsets I feel Aussies have. like कमिंस को कैसे भूल सकते हैं यार. उसने क्या बोला था वर्ल्ड कप फाइनल के पहले, कि हम ही जीतेंगे. he said ना कि in sport there is nothing more satisfying than seeing a big crowd go silent on the big day. और वो एक्चुअली हुआ ही उसके स्पेल में. उसके कोहली को out किया कोहली था का कोहली. विकेट के बाद पूरा पूरा स्टेडियम ऐसे हो गया. पूरा साइलेंट. नो डाउट गेम के बाद साइलेंट ही हुआ Silent था, ही हुआ. बट दैट वाज द मोमेंट जहां वो. But you know, Pat Cummins is, I feel, the only fast bowler captain who is a captain. Exactly. But usually ना क्या होता है, कैप बना फास्ट बॉलर को कैप्टन नहीं बनाते. There's a reason what I feel is कि यार अब वो पेस बॉलर जब डालता है ना, वो ऑलरेडी बहुत फटीग में रहता है. यहाँ से सोचना कि अब मुझे क्या कुछ प्लान करना है, कि कुछ फील्ड लगानी है, कुछ सेटअप करना है, वो ज़्यादा नहीं होता है. तो यूजुअली आप मार्क करोगे कभी भी कीपर को बनाता है कैप्टन, या बैट्समैन जो प्योर बैट्समैन है उसको पूरे मैच में बैटिंग ही करनी है. और कीपर का बेटर क्यों रहता है, बिकॉज वो उसको फील्ड व्यू भी अच्छा प्लेसमेंट. आता है. एंड प्लस ही इज समवन के उसको वही पोजीशन से, अभी बॉलर को क्या भागना है, बॉलिंग डालना है, वो थकता है, फटीग आता है. देन हिज थिंकिंग एबिलिटी इज आल्सो वेरी लेस. मतलब इट स्टार्ट्स गेटिंग, अभी आप Ideas खुद नहीं पे आते. रिकवर करने का सोचते हो कि अभी नेक्स्ट ओवर मुझे क्या करना है. नाउ आई हैव टू, देखा मैंने यार स्पीड मेरी ये ओवर कम हो गई थी, आई हैव टू रिकवर, आई हैव टू अगेन बोल नेक्स्ट ओवर इसके बाद. तो अब यार उसको आप खाली एक पैट कमेंट्स है और एक टाइम के लिए उसके लिए बुमराह को कुछ टाइम के लिए रखा था. एंड ही फेयरली डिड वेल आल्सो, also. बट द बॉडी कुडंट. तो उसीलिए Keep कभी it भी up. पेस बॉलर को खाली कि ऑसी है जो ये लोग बना रहे हैं, और Cummins. he did it and उसने brought to the perfection. Also, if we see the World Cup winning captains from 1975 to 2023, pace bowling प्योर बॉलर Pure कमिंस bowler. ही है वर्ल्ड कप Cummins ही है. और कोई नहीं है. कोई नहीं है आज तक. चले. नहीं, पेस बॉलर just gets very difficult to then think and capitalize कि अब गेम को क्या करना है. एंड ही इज प्लेइंग 3 फॉर्मेट्स ऊपर से, टेस्ट, ओडीआई, T20. ऑस्ट्रेलिया उसको दे आर मैनेजिंग आल्सो, द बोर्ड इज आल्सो मैनेजिंग हिम वेरी वेल.
And also I feel with Bumrah also, अगर Bumrah is picking and choosing matches वो करना भी चाहिए, because करना चाहिए. बुमराह का तो रन अप वगैरह also is not like His every bowling bowler. action is very orthodox, very unique. Like Something also, that is very prone to injury. like you will mention better, because you yourself you are a bowler. Imitating a Bumrah is definitely not going to help you as much as it helps him. अरे Right? आप इंजरी के शिकार हो जाओगे. Mad हो You are जाएगा. very close to injury when you are bowling something like that. और उसका रन अप देखोगे कितना छोटा है. वहां से if he is able to generate 145 just from the crease, then you imagine what amount of load is there on his lower back, glutes, knees, ankle, shoulder, etc., etc., etc. From there, if I tell you to bowl 23 overs, 25 overs in a test match, first day, सेकेंड डे पे कुछ और, या और आपको सेकेंड ये आपका इनिंग हो गया, फिर से आपको बॉलिंग डालनी है, तब और 10-15 ओवर, तो पूरे टेस्ट मैच में वो 30-35 ओवर डालेगा, 140, 145. और उसको अगर आप बोलोगे पांचों टेस्ट में कर, तो वो Impossible. वो कर भी सकता है, बट देन देयर इज एशिया कप कमिंग, देन देयर इज अनदर. Also his career also, वो prolong career बहुत छोटा हो जाएगा फिर. छोटा हो जाएगा. एंड नेचुरली ऑल्सो पहले मैं देखता था कि ये सब ऑप्शंस स्पेशली आईपीएल इतना हम लोग को वी वॉट एवर वी सी वी फील दैट एब्सोल्युटली, एंड इट्स ट्रू ऑल्सो, द पेस bowlers आर बीइंग पेड comparatively higher than any other batter, keeper, anyone. Also this drawback is that pacers have a very small career, right? If you are playing all three formats. If you are playing all three formats. So naturally the play time is also very less, and you have to train much harder than the other players. You have to train. Then if you look at Jimmy Anderson, England ECB ने उसको पहले उसके peak young days में उसको white ball खिलाया. Post that from last, let's say उसके peak, उसके young age के बाद, he just played red ball. He and Stuart Broad, because they knew कि ये दोनों हमारे match winner है. I guess ये change England लाया when Owen Morgan became the captain, right? After the I think so. 2015 World Cup. I think so, because post that he has not played white ball. Exactly. After the 2015 He World not Cup, played white they ball, haven't. and then he played straight 7-8 years consecutive of just pure test match red ball game. तो भी आप देखो, चलो काउंटी वाउंटी कुछ खेला होगा, बट समथिंग दैट इज वेरी नेशनल साइड पे उसने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट खाली रेड बॉल में किया. And that too till 41-42. Kudos. वो आईपीएल नहीं खेला, तो Exactly. 3 महीना आईपीएल नहीं खेला, वही 2-3 महीना आईपीएल नहीं खेला, T20 जो ये होते हैं वो नहीं खेला, वाइट बॉल ही तो उसने अभी skip रेड किया. बॉल के मैचेस कितने हो गए. तो देन ही कैन प्ले. अगर आप कोई भी पेस बॉलर को बोलोगे तुझे खाली रेड बॉल ही खेलना है पूरे साल, तो वो सारे मैच में 20-20 ओवर भी डाल सकता है, सारा टेस्ट खेल सकता है. उसको आप बोलोगे तुझे वर्ल्ड कप भी खेलना है, तुझे T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तुझे आईपीएल भी खेलना है, और तुझे रेड बॉल भी खेलना है. एंड आईपीएल ऑल्सो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बुमराह, आईपीएल वो क्यों नहीं खेलेगा भाई? इतना अच्छा यू आर प्लेइंग फॉर सच अ बिग फ्रेंचाइज लाइक मुंबई इंडियंस. And not to disrespect other teams, but Mumbai is a big, and also the owners also, Ambani's. Obvious है, you are having a good fat contract. Why would you miss out on it? और वो भी 4 ओवर है. 4 ओवर है. 4 ओवर है. And that is why even Ishan Sharma is still playing na IPL. He's playing DPL also, Delhi Premier League. Why? Because you just have to bowl 4 overs, and impact player के हिसाब से आप बाहर भी जा सकते हो. Exactly, बैटिंग वगैरह का भी कोई नहीं. So, या फिर 4 ओवर लाइक अगर डेथ में या फिर मिड ओवर्स में आ रहे तभी अभी भी they'll आप get डालो used. 4 ओवर डालो, निकल जाओ अगर इम्पैक्ट प्लेयर बन गए तो. या बुमराह इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बनता है, वो खेलता है, वो फील्डिंग करना है 16 Proper. ओवर, तो वो क्यों ना करे. As we are talking about IPL, you also have played with a couple of stars. How was the experience bowling to them? Superb. Like in terms of work ethic, also very good. I've played with few of them, not much, but the discipline, the punctuality, कि उन्होंने बोला कि you have to come and bowl, you have to report at 9:30 in the morning XYZ जगह पे, they'll be there by 9:20. So practice 9:35, 9:40 को शुरू हो जाता है. So these are the things that एक international player, IPL खेला हुआ player भी
वो 1 घंटा लेट भी आता तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, हम्म, बट दीज आर द थिंग्स टू लुक आउट फॉर ऑल्सो ऑन प्लेयर का। वो कहते कैसा रहता है? ठीक है, लाइक अ फ्यू स्टार्स, कुड यू नेम फ्यू ऑफ देम? Like I've practiced 4-5 sessions with Prithvi Shaw. ओके, Yashasvi Jaiswal, I met him randomly. I was in MCA BKC bowling to the Jammu Kashmir camp. उनके Okay. कैंप में था रणजी ट्रॉफी के, वहाँ मैं I ड्यूरिंग was रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी, वहाँ मैं उनके कैंप में आई वाज जस्ट बॉलिंग, एक सेशन के लिए मैं बुक गया था। सो जम्मू कश्मीर का हमारा प्रैक्टिस खत्म हुआ, मैं वो एक ही दिन बीकेसी में था, वहाँ उनको बॉलिंग डाला मैंने। तो देन वहाँ थे पारस डोगरा डोमेस्टिक लेजेंड, युद्धवीर सिंह एंड ये अब्दुल समद, वो सब लोग थे। तो वहाँ उनको बॉलिंग डाला, खत्म हुआ तो इनका लंच हुआ, तो दे वर लाइक कि चलो लंच के लिए, इवन द नेट बॉलर्स वर अलाउड टू हैव इट। तो हम लोग सब वही उनके ड्रेसिंग रूम में वी वर अलाउड टू गो। तो वहाँ देखा जो सामने दूसरे मुंबई का ड्रेसिंग रूम था, वहाँ दिस गाय यशस्वी जायसवाल, ही वाज डूइंग सम टेपिंग ऑन हिज एंकल एंड समथिंग लाइक दैट। So Yashasvi Jaiswal and my mentor Yogesh sir, they work together. Okay. So I think Yashasvi Jaiswal told sir कि मेरे कोई रिश्तेदार है, he is a cricketer and he needs someone, जैसे आप मेरा वो कर रहे हो वैसे for that guy also I want someone. So Yogesh sir told me कि Aryan, you have to look after that kid for his training and all. His SNC. तो सो यू आर असिस्टेंट? yeah, so I assist him and then तो मैं वो बच्चे का ट्रेनिंग के लिए वो even he plays cricket, he's 13-14 something, so उसका ट्रेनिंग करने के लिए मैं जाता था। So then when I met him I was like भैया, मतलब जायसवाल भाई आप जानते हो ये आपने सर को बोला था ये बच्चे के लिए, तो आई एम द वन हु इज लुकिंग आफ्टर दैट किड इन टर्म्स ऑफ द दिस थिंग। तो then he's like हाँ आर्यन ना, तेरे याद आ गया। So he remembered, he clicked Jaiswal. instantly, yeah. Instantly he clicked कि sir told me some Aryan, yeah, he's gonna look after that, and वो हो गया। Okay. तो then he's like what are you doing here? I'm like भैया वो JNK के उधर बॉलिंग डाल के अभी खत्म हुआ है, नहीं मैं अभी पैडअप कर रहा हूँ, तू 10 मिनट में आ जा। सही। आई एम लाइक मैंने यहाँ ऑलरेडी 1-1.5 घंटा बॉलिंग डाल दी है, अब आके आप मेरे को मारोगे अगर next अच्छा में। नहीं है तो फिर मैं फटाफट मैंने भी स्पाइक डाले और मैं गया वहाँ, मैंने bowling डोपामिन डाली। रश हुआ रहेगा ना। हाँ अरे अपने इनको तो अभी फिर दिल से इंडिया डालनी गैप है भाई। इनको दिल से बॉलिंग डालनी है, तो वहाँ मैंने अच्छे से डाली, बहुत अच्छे से डाली, मतलब सही। वो मेरे को खेल रहे थे, देन ही कम अप टू मी, देन ही वाज लाइक कि यार तू अच्छा बॉलिंग डालता है यार, तो आई विल कॉल यू नेक्स्ट टाइम आल्सो। आई एम लाइक ओके थैंक यू। वो हुआ, तो वो खत्म होके देन आई कॉल्ड अप माय सर, आई एम लाइक सर आई मेट जायसवाल। जायसवाल एंड बॉलिंग सेशन हुआ ये वो, एंड दैट वाज वेरी रैंडमली, नॉट फिक्स्ड, बट देन फिर उसके बाद चलो हो गया। बट ब्रो यू गॉट एनीथिंग साइंड फ्रॉम जायसवाल? No, I just took a Bat picture. press No. signature. I was without my kit now. I just अच्छा, carried my हाँ. TheraBands and all that and spikes. So I didn't have any this thing. One I would have Yeah, definitely. then I would have taken a sign for sure. Yes. But then I नहीं, clicked a but picture with him and yeah. चल लेट्स मेक द पॉडकास्ट थोड़ा फन भी करते हैं। Hmm. तो ऐसा कभी हुआ है क्या, रिंकू सिंह वाला इंसिडेंट आ गया, भैया बैट दे दो, आया क्या कभी? मेरे को दिल से लगा था जब पृथ्वी शॉ के साथ सेशन था ना, तो प्रैक्टिस खत्म हुआ, मैंने तो यूजुअली व्हाट आई डू इज देन आई गो एंड आस्क अबाउट माय बॉलिंग का कि कुछ Which so you have had couple of more than one, मोर right? देन लाइक 3-4 सेशन किए, तीन फिर चार ना? 5 सेशन किए। सो देन इन द थर्ड फोर्थ सेशन तो मैं चल के आता था, अरे कैसा है आर्यन, तो आई वाज शॉक्ड, ये बंदा मुझे कैसे पृथ्वी। नाम से जान रहा है। हाँ कि पृथ्वी शॉ हाउ इज ही नोइंग मी विद कि भाई आर्यन कैसा है, तो वो ही रिमेंबर्ड इंस्टेंटली। देन व्हाट हैपेंड के प्रैक्टिस खत्म हुआ एंड देन उसका किट बैग था, तो मैंने बैट उठाया, ओह इतना हल्का और इतना बैलेंस, बैट में इतना अच्छा था कि उसके 3-4 बैट पड़े थे, तो मेरे को बहुत दिल मन आ गया कि मैं कहा भैया यार बैट दे दो। 1100 ग्राम का रहेगा ना? 1160-50 के आसपास का बैट था, बट बहुत मस्त बैट था, सही। टॉप नॉच Obvious. प्लेयर, टॉप नॉच बैट। डेफिनेटली। तो मैंने बट पूछा नहीं फिर ऑब्वियसली, तो बस फिर बट आ रहा था इंसिडेंट, तो आ गया रहा था, था, रिंकू सिंह वाला आ गया था। your face is saying it. और अगर वो बैट आ जाता ना मेरे पास, मैं उसको संभाल के वो स्पेसिफिक मैचेस के लिए आई वुड हैव टेकन इट आउट, इतना मस्त बैट था। You have been like ऐसे कि भैया मेरे को एक बार नॉकिंग या कुछ करने का?
नहीं 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 यार, अरे कहीं कुछ बॉटम पे लग जाए बॉल और कुछ बैट को हो गया तो फिर तो बिल आ मुझे जाएगा, दिक्कत हो जाए कुछ, बिल तो आएगा, उससे अच्छा है कि इट इज बेटर के या तो आप दे दो। या तो हाँ, रखो। बट वो फिर बैट तो बहुत ज्यादा हो जाता है यार मांगने के लिए। बट लाइक यू मेंशन्ड कि पृथ्वी शॉ के साथ कपल ऑफ सेशंस हुए अभी, हाउ हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ओवरऑल, एंड कैसा द रिलेशन कैसा था? Very good. I've never seen someone time the ball better than him. To be very honest, हम्म मैंने जो भी JNK के प्लेयर्स को भी डाला है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब इतने बढ़िया टॉप नॉच प्लेयर्स है, बट इसको मैं बीट ही नहीं कर सकता। पृथ्वी शॉ को मैंने बॉलिंग डाली, मैं मतलब बीट कर रहा था, मतलब कैसे पता है, यूज्ड टू लीव, ये जो भी उसने कनेक्ट किया ना बॉल, दैट ऑल फ्रॉम द मीड ऑफ द बैट। मतलब कहते हैं ना बल्ले के बीचों बीच लगी हो, सब बॉल उसने वैसे मुझे खेला है, ऑन ओके, ऑन पॉइंट। लाइक सी लाइक जायसवाल का हाउ यू गॉट दैट इंटरेक्शन एंड ऑल, नाउ वी नो दैट। शॉ के साथ कैसा हुआ इंटरेक्शन, या फिर हाउ दे अप्रोच्ड यू और यू अप्रोच देम? नो नो नो, सो मैं जो एक दो बार कुछ प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसके जो सर है ना, उनने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, आप बॉलिंग के लिए आना, जहाँ रहेगा वहाँ। तो खार जिमखाना में था, MIG पे था, तो वहाँ मैं गया था 2-4 बार। तो उसके बाद यूजुअली ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बट वो बॉलिंग के रिलेटेड बातें होती थी, कि समझो बॉल डाल के भी वो मुझे बोलता था यार ये लेंथ पे मत डालिया, ये डाल रहा आगे तो मैं मारूंगा ही। तो या प्रैक्टिस खत्म होने के कैसी जा रही थी, कि पेस कितना आ रहा था, हाउ मच वाज आई बॉलिंग, क्या स्पीड, मतलब यूजुअल द गेम टॉक्स, नॉट नथिंग मच पर्सनल एंड फैंसी। लाइक यू हैव नेवर आस्क्ड कि ऑन वेयर आई कैन इम्प्रूव, या फिर एनी टिप, हाँ हाँ, एनी सो टिप्स? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि उसके बाद बात उतना ही होता था गेम रिलेटेड, कि क्या काम मैं अच्छा कर रहा हूँ, और कि मतलब मेरी स्पीड अच्छी है, या मेरा बॉल मूव अच्छा कर रहा है, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, या वेयर शुड आई वर्क ऑन। लाइक कि व्हाट सजेशन एनीवन, लाइक जायसवाल हो या फिर जो भी जम्मू के प्लेयर्स हो या फिर इवन पृथ्वी शॉ, व्हाट सजेशन दे हैव गिवन यू एंड यू हैव टेकन इट सीरियसली जिससे गेम इंप्रूव हो? So one suggestion I got from Prithvi Shaw was कि now I was bowling him a slower one. I bowled him a slower one, and समझो वो approximately 100-105 का स्पीड पे बॉल गया स्लोअर वन, और मेरा नॉर्मल पेस समझो मैंने उसको डाला 115-120। तो ये लाइक कि यू मेक श्योर कि यू इंक्रीज योर पेस, सो दैट वंस यू बोल 130 देन यू बोल दिस स्लोअर वन 105 वाला, या 100 की स्पीड पे, ना तो द डिफरेंस इज 30 का। सो वो पिक करना और डिसीव करना बहुत इजी हो जाएगा धीरे, और पिक करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। ब्रावो के साथ भी ऐसे ही है ना? हाँ, तो और यही अगर आप 115 की स्पीड पे डाल रहे हो और फिर 105 वाला स्लोअर वन डालोगे ना, तो उसमें कितना फर्क है, 10। तो वो टॉप लेवल पे ना वो पिक करना इजी हो जाएगा, आपको मारेंगे वो बॉल पे, स्लोअर वन पे भी। स्लोअर वन बॉल इज समथिंग कि जो आपका जो की बॉल, कि वो बॉल पे या तो विकेट आएगी या मेरे को रन बचेगा, उस पर मैं चौका छक्का नहीं होगा। अब जब आप 130 से फिर 100 की स्पीड पर, तो बैट्समैन डिसीव होएगा। तो वो उसने मेरे को बोला कि तू स्लोअर वन तेरा बहुत अच्छा है, वो डिसेप्टिव है, वो तेरा एक अच्छा स्ट्रेंथ है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी यू हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर पेस, सो दैट देन व्हेन यू बोल दिस वो डिफिकल्ट हो जाए खेलने के लिए। Also, जायसवाल का what was his suggestion or anything? So we didn't Advice? talk much because that time the राजस्थान रॉयल्स के वो एक दो लोग आए थे, वो उसका बैटिंग Yeah, के yeah, लिए, RR का he's already वो जुबिन भरोचा सर और वो आए थे, Hmm. और एक दो कोई वीडियो शूट करने के लिए सब आए थे। They तो are दैट content डे, team. हाँ दैट डे फिर यू स्टक बिकॉज जुबिन सर आई थिंक दे वर्क टुगेदर, सो दिस ही हैड कम प्योरली बिकॉज ऑफ द मुंबई जम्मू कश्मीर का रणजी ट्रॉफी के लिए, दिस गाय कॉल्ड जुबिन सर कि आप आओ गाइड मी थ्रू ये द गेम आई प्रैक्टिस। गेस ये साल ही हुआ था ना, 20 अर्ली एंड मुंबई लॉस्ट द गेम, जैन फेब में हुआ था। Mumbai lost the game against JNK, which was not expected. In the JNK camp, that day all these guys were talking कि तुम लोग मुंबई वाले एकदम स्पिनर वाला विकेट बनाओगे, because जम्मू कश्मीर is known for pace bowlers. हाँ। तो giving them spinners is कि भाई अब तुम फंसोगे। और देखा वो दिन मैच डे पेसर्स विकेट ले रहे थे, और अपने वाले वो दिन फंस गए सब मुंबई के प्लेयर्स। हाँ। और Rohit also played ना that game? that match there were 7 India players, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे,
जायसवाल, रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर. So there were just 7 big shot people who were playing, and सामने JNK में there were no big names, but still somehow JNK won the game. मुझे बहुत बुरा लगा. बुरा लगेगा ना ऑब्वियस, Although मैंने bowling JNK में डाला था, मुंबई- but still मुझे लगा कि नहीं यार मुंबई जीतना चाहिए था. बिकॉज ऑब्वियस मुंबई मुंबई का का. स्पिरिट. Yeah. अच्छा, इसका मेरे को बोलने का था कि जम्मू कश्मीर में तो ये है ना अब्दुल समद, हम्म. कैसा है भाई? बिकॉज आईपीएल में तो अभी रिसेंट भी ये सीजन वैसे हार्ड हिटिंग तो अच्छा है उसका, पावर हिटिंग वगैरह मारेगा तो कोई हाथ नहीं डालता अंदर नेट्स में. सूझ जाएगा उंगली भाई. टूट जाएगा. मतलब मैं भी सोचता इसको इधर बॉल नहीं डालूं जो बीच की बॉल होती है कि ये सीधा मारे कि मेरे मुंह पे है. बाहर डालो ये और कहीं मारेगा, ठीक है. वो क्या है, लाइन लेंथ रीड करता है क्या अच्छे से बॉल, या फिर प्योर टाइमिंग? नहीं यार, अभी वो लेवल के प्लेयर्स तो ऑलरेडी दे नो कि आप क्या किधर डालने वाले हो. वो ऑलरेडी Muscle माइंड memory में रीड कर रहता देते है. हैं, और इतना खेल खेल के ना वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाते हैं कि अब बॉल इधर आएगी तो ये शॉट तुम ऑटोमेटिकली आ जाता है. कन्वर्सेशन कुछ हुआ था समझ के साथ? नहीं. मेरा सबसे ज्यादा जम्मू पारस क्या? डोगरा जो है ना, जो जम्मू कश्मीर के कैप्टन है वो टाइम के, मतलब अभी भी है, एंड ही इज अ डोमेस्टिक लेजेंड टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाउ योर इक्वेशन? उनके साथ तो मैंने बहुत बात करी, आधा घंटा मैंने उनके साथ बात करी होगी. पोस्ट जम्मू कश्मीर विक्ट्री अगेंस्ट मुंबई तभी बात हुआ? नहीं तब नहीं हुआ. तभी नहीं हुआ. हाँ. व्हाट सजेशंस यू गिव फॉर योर बैटिंग? सो उनके साथ बात हुआ कि पहले उधर थोड़ा विकेट गिरा था तो लेट हो गया हमारा प्रैक्टिस शुरू. तो आई वाज टॉकिंग टू हिम अबाउट कि बैटिंग का क्या माइंडसेट होता है व्हेन यू गो ऑन टू बैट, व्हाट्स द थिंग कि वो पिच तक जाने का आप जो वॉक करते हो उधर thousands of thoughts come into your head. what do you focus on? Like देख तू जाएगा, क्या होएगा ज़्यादा से ज़्यादा, पहले बॉल पे आउट होएगा, और क्या होएगा. तो तू फ्रीली जा, सोच के ये मत जा कि यार खुद पे वो स्ट्रेस मत ले गया. you don't have to take any sort of burden कि I have to score 50 100 whatever. ठीक है, और तू जा रहा है बिंदास जाके खेल, प्ले योर नेचुरल गेम. यू डोंट हैव टू थिंक मच के क्या है, जीरो ही होएगा ना, जान तो नहीं जाएगी ना, दुनिया खत्म नहीं होने वाला है. यू विल गेट सम अदर अपॉर्चुनिटी. तो टेंशन में जाके भी जीरो पे आउट होगा, उससे जो बिंदास होके जा. he was saying कि देख वैसे वो he gave me example of वीरेंद्र सहवाग saying कि वो he used to sing just to distract himself from the thoughts. तो लाइक तू ऐसा कर सकता है, तू गाते हुए जा आराम से, तो तू वो कर सकता है. He has played for Kings Eleven Punjab, na? He's played And for Sehwag also yeah, he's played with them. was in Punjab, so naturally. वो उनने उसके लिए बोला कि वो तू या तो गा के हुए जा तो तुझे वो थॉट्स नहीं आएंगे कि मैं क्या स्ट्रेस में या क्या सोच के जाऊँ. You have tried it? नो वो मेरे से नहीं नहीं होता होएगा है, यार. नहीं होता है. मैं भी वो सोचता just- हूँ कि अगर बैटिंग है गाऊंगा तो नहीं होता है. मे बी नहीं होता है. But then everyone- it just it suits it's someone. not for everyone. वो तो है. Then you like now these days there are spinners who don't turn the ball much. They just bowl straight. So you play according के भाई ball सीधी आएगी. So all that things, you know, and try hitting sixes here, you back yourself, and all that things we were talking about. So we had a good chat, and from there I felt कि क्या humble इंसान है कि ये एक, मैं जिसको जानता नहीं उसके साथ भी वो आधा घंटा खड़े रह के वो एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या करना चाहिए ये वो, एंड क्या लेवल के प्लेयर. Definitely it shares to me. You also get to learn a lot, na, from these conversations. Batting मैसिव. बैटिंग कैसा करे. और सब मैंने जितने भी कुछ बैटिंग के लिए पूछा भी है ना, तो बोले क्या होएगा ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल. कोई आउट हो जाएगा. हाँ चलो, ये दैट डजंट मीन कि आपको आपके विकेट की कीमत नहीं पता. यू डोंट कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है, वैसा नहीं है. While going there, you have to give your best. हाँ, बट आपको एक होता है कि देयर शुडंट बी एनी फियर व्हाइल प्लेइंग. डर के तो कोई नहीं खेल सकते ना. डर के रहेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एट द बैक सीट. राइट. वेरी वेल यार, कसम से. वो एक फियर का एक गेम होता है यार. फियर हट जाएगा ना तो आप खेल सकते हो. अब देखो एक प्लेयर
डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है और आईपीएल में नहीं परफॉर्म कर रहा है। टैलेंट तो वही है, स्किल तो उसका उल्टा और इम्प्रूव हुआ है ना। वही आईपीएल में क्या होता है, बड़ा ग्लोरिफिकेशन होता है, देयर इज सो मच ऑडियंस, देयर दैट, आप स्ट्रेस में आ एंड इन जाते हो। द चेंजिंग रूम यू आर प्लेइंग विद हाँ, इंटरनेशनल प्लेयर्स सो एज वेल। आपको फियर आ जाता है दिमाग में कि यार ये देख रहे हैं। समझ, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन सीएसके, देयर ओ महेंद्र सिंह धोनी वाज वाचिंग योर गेम, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग अ थॉट कि वो भी हो सकता है ना, क्योंकि वो नेचुरली। तो वही, अगर आप डोमेस्टिक में हो, आप डोमेस्टिक में तो आप सेट प्लेयर हो कि आपको कोई डर ही नहीं है, आपको यस। कोई देखता नहीं है, मतलब एंड यू नो द कि पब्लिक मेरे पे नहीं देख रहा है, लाइक एज यू हाँ। मेंशनड सीएसके ओनली, अभी चेन्नई सुपर किंग्स का मैच और कोई यंगस्टर इज मेकिंग हिज डेब्यू, और इन केस अगर उसका डेब्यू अच्छा नहीं जाएगा तो कितने फैंस उसके ऊपर टूट पड़ेंगे कि इसको हटा दो यार, इसको नहीं आता है। तो वो फियर ऑटोमेटिकली वैसे आता ही है। इट क्रीप्स अप। तो you was talking about the fear part only कि you just have we played so much कि now like कि मेरे को फिर भी, मेरे को अभी भी मैं बैटिंग पे आता हूँ, मेरे को फियर आता है even after playing so much, like you रहता just है have to counter it. बैक ऑफ द माइंड। Yeah. ऑब्वियस वो तो है, एवरीवन हैज दैट फियर, बट हाउ यू डील विद इट Now someone person to person. sings and counters it, समवन तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट breather, करेगा। हाँ, he told me about that also, he told me about breathing, you focus on your breathing। तब वो टाइम पे ना, अगर नहीं गा रहा है तो he told me कि just focus on your breathing, and when you breathe better you intend to make good decisions also, you intend to make right decisions। आप खेलने के पहले आप अगर आपने अच्छा breathe in किया है, breathe out किया है, then when you play the first ball you play it with good focus। Also, like now you have played with like they have guided you also, advice भी दी है। कभी you have taken advice कि before the match कैसा रहना है, after the match कैसा रहना है, कभी आया ऐसा questions you have asked? What I do is just go with my plan when it comes to bowling कि यार ठीक है, कैप्टन से बात कर ली, क्या करना है, फील्ड क्या रखनी है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू, सिंपल के क्या चाहते हो तुम मुझसे, कि कैसे बॉलिंग डालनी है, किधर डालनी है। हाँ, अगर वो बोले कि नहीं तू तू तेरे हिसाब से कर, तो आप अपना प्लान से जाते हो, वो सोच के मैं जाता हूँ। बट आई जस्ट गो विद द फ्लो व्हेन इट कम्स टू बैटिंग ऑल्सो ना, मुझे दिखती है ना कि ये बॉल मैं मार सकता हूँ तो मैं मारूंगा। अब पहले से मैं ना सोच के नहीं आता कि यार मुझे विकेट बचा के खेलनी है, हाँ खेलनी है विकेट बचा के, बट पहले से मैं सोच के आऊंगा ना कि यार आई डोंट हैव टू हिट सिक्सेस, आई जस्ट हैव टू प्ले नीचे नीचे से, देन वो भी नहीं हो सकता। तो यू जस्ट डोंट प्री प्लान थिंग्स। हाँ, यू प्री प्लान थिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्लेयर कि ये प्लेयर का वीक पॉइंट ये है, इधर करना है, इधर बॉलिंग डालनी है, या ये एक्सपर्ट कर दो। हाँ, कि ये बॉलर का ये वीक पॉइंट बॉल है, उसको वैसे मारनी है, वो अलग बात है। बट खुद का प्री प्लान आप क्या करोगे, आप खुद को रोक नहीं सकते। वेरी वेल। इफ यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ to, if your ability, if your strength is only hitting sixes, and if you pre-plan it कि नहीं आज सिक्सर नहीं मारने मुझे कुछ भी करके, या तो अभी ईशान किशन पहला उसका डेब्यू T20 उसका सिक्सर है, पहला ही बॉल, वो प्री प्लान करके क्या गया रहेगा, इंटरनेशनल डेब्यू, पहला बॉल बहुत ध्यान से खेलना है, विकेट चली जाएगी, करियर खत्म, उसने छक्का मार दिया। सूर्य कुमार यादव पहला बॉल जोफ्रा आर्चर 6। एग्जैक्टली। अगर इफ दीज गाइज आल्सो दे प्री प्लान थिंग्स when it comes to क्यों नहीं पहला बॉल बहुत संभाल खेलना है, I have to do this, तो नहीं होएगा ना। उसको लगा बॉलर ये स्लॉट पे डाले, उधर मार दिया छक्का। he could have thought कि पहला बॉल है, I'll duck it। अगर गलती से कैच वैच जाएगा तो या पहला बॉल छोड़ दिया, डक कर दिया, सेफ हो जाता पहला बॉल। वेरी वेल। तो यू नो प्री प्लानिंग थिंग्स, इट कम्स ऑन टू द प्लेयर्स कि यार ये प्लेयर के लिए क्या मुझे प्लान करना है, बट फॉर योरसेल्फ ओके यू नो योर स्ट्रेंथ्स, यू जस्ट back yourself with you even when it comes to bowling, batting। mindset is mindset very is crucial। mindset like is the अभी key। कंपटीशन कितना बड़ा है फॉर क्रिकेट एवरीवेयर, बट क्रिकेट का तो एक अलग ही लेवल का है इफ यू सी। बट आई गेस माइंडसेट इज द बिग थिंग व्हिच इज वो विल पावर कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, वो एक है। ऑल्सो लाइक अभी लाइक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचिंग में how it has enhanced your knowledge and the way you groom yourself and adapt yourself for before a match?
Before a match, generally it depends now what match you're playing, what's type format. Okay. Conditioning किस में किया है training? Sorry, certifications वो can you See, mention? now BCCI recognizes ASCA, that is ASCA, Australian Strength and Conditioning Association, NSCA, so you have to do CSCS, and these things are associations जो BCCI के साथ tie up हुआ है. So you do these, so the BCCI recognizes it. But for your knowledge, you can do any course. There is ASCA, which is very good. All these courses are very good in terms of the knowledge also. But I feel in this industry, along with the certification, I feel कि आपका personal interest क्या है, what your passion tells कि आप ये फील्ड में कितना रहोगे. ये सर्टिफिकेशन सबका होता है, सबके पास होता है, सबके पास लेवल 1 2 लाइक आस्क हैज 3 लेवल्स, सबके पास होते हैं. चलो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एक्चुअली, बट certification at the end comes. But the passion for this field requires passion more than the Also, if certification. anyone wants to do a certification, जो podcast देख रहे हैं, उनका क्या criteria है वो बस can you elaborate? See, there's no you see now these ASCA and all, they don't require any science background in this thing. Okay. So now if you end up doing a bachelor's course, a complete 3-year course, bachelor in sports science or something, that requires some universities ask, some colleges ask for a science background. But these which the BCCI recognize, उन सब में there is no criteria कि तुम्हें पीछे science background होना चाहिए or something like that. If you can study, if you can understand, if you crack the exam, you're good to go. So the only criteria you need is passion, to be honest. This field requires passion. अब क्या passion से आप वो athlete को सिखा रहे हो, उसको demonstrate कैसे कर रहे हो, क्या प्री प्लान उसके लिए करके आ रहे हो. These are the things that you look after more or less as compared to the. Well, also like see, you might have worked with couple of individuals, right? In this process, what they have taught you? See now one athlete वो जो टूर पे आते थे वहाँ क्या होता था, they used to not like they used to go somewhere in Korea and somewhere, तो वहाँ food is a big problem, nutrition, okay, and that person eats only veg, and now you don't expect them to go there and get pure vegetarian food, right? True. But then somehow they manage to eat boiled stuff and the packed food that you carry from here and just put hot water, and still they end up playing well. So that's what you see, learn कि यार ये बच्चे भी packed food खा के और सूखा फूका खा के भी if they can perform on the ground, then तो यार आप सभी कर सकते हैं. Exactly. Also, you yourself, you're a vegetarian, right? How is your body transformation, या फिर we can ऐसा भी बोल सकते हैं कि diet, because अभी ना normal बंदा भी जिम जाता है vegetarian ना, I'm not talking about the non-vegetarian, they are like कि अगर मैं non-veg नहीं खाऊंगा body नहीं बनेगी, and you don't even consume eggs, right? No, it's not even hidden eggs like in cakes or something like that. So Pastries. what's the process for you for the carbs? See, for me, first 2-3 years though, I used to not even take any supplements or something like that. It's just pure desi घर का खाना, to be honest. Like my mother is like my best nutritionist, I can say for myself. Like जो बनाए मैं खाता हूँ. I agree. Moms are very good, man. Moms are very good in terms of setting up your diet. But see, you just have to like you just have to understand where you get your proteins from, where you get your good carbs from, good fats from. That's it. Yes, if you eat non-veg, there is some benefit here and there. Okay. But now there are options to cover it up also. Like you have supplements. What I used to do is I used to have good protein like paneer, used to have pulses, then nuts and all, basic nuts, seeds, tofu हो गया. But very rare I used to have tofu. I used to not
used to feel like it's same like paneer only. Ah, So I used exactly. I used to consume more often paneer only, like Oh. soya I used to have. So I used to manage my this, and I don't have a set this thing. For example, there's this you have to have 1 gram of protein per body weight. So for example, if I'm weighing 70, I have to have at least 70. That is for a normal human being. Yep. Athletes have to have at least 1.5 to 2.5 grams per body weight. Yes. Okay. But then I used to not focus much on the protein part also, because I feel that even good fats are very important. More people only talk about protein. कि वेज खाने में प्रोटीन नहीं है, बट ठीक है आप you can cover it up. But people don't talk about, even the non-veg people who eat non-veg, they don't talk about the good fats. कि आपके डाइट में गुड फैट्स कहाँ से है, नट्स, सीड्स, चीज. So I used to moreover focus on my good fats and carbs also. My usual diet was very ऐसे roti, sabzi, Yes. salads, here and there, soup, but no ऐसे fancy stuff like you boiled boring stuff. No, I used to have tasty. I used to have pizza also, but home cooked. Home cooked. Home cooked As a आपका रोटी, घर का बचा हुआ रोटी, उसके ऊपर आपने टॉपिंग्स डाल दो, हाँ, बन जाएगा. tomato sauce you put, you add bit of veggies, You a like lot of tomato cheese. sauce? You like tomato sauce? In pizza you don't have any option, right? Arey, I'm not a fan. So in pizza you don't have a choice. Yeah, And then I used to have pasta, but the pasta I used to get it the nachni one. Okay. So instead of it being maide wala, I used to have the nachni wala. You just have to make some changes in your this thing. And even I tell you, even it is necessary to people should have whey protein. Exactly. Even ऐसे नहीं कि खाली वेज ही, अब नॉन वेज कर रहे हो फिर भी you if you feel के you cannot eat 15 Sufficient eggs a protein day. नहीं आ रहा है. You cannot eat 15 eggs a day. 100 ग्राम चिकन खा लिया आपने या रेड मीट खा लिया, you cannot have that. मतलब आप दिन में रोज नहीं खा सकते हो. Exactly. For a normal human being. So then you have to put in some supplement. Some protein intake has to be there. Some at least even Indian अगर parents they basically don't put कैसे in. कि अगर sufficient नहीं है तो फिर you definitely you need a whey protein. You need, see, supplement is not कि you cancel your normal food that you are eating. That's wrong. और उसमें आपने ऐड करके आपने उसकी जगह supplement is what, something that you have to, जहाँ कमी लग रही है वहाँ तुमने ऐड किया है, जो है उसको क्यों काट के आप ऐड करोगे वैसा. Exactly. So yeah, The these first are 2-3 facts. years I felt that I was going good, but then the amount of training and intensity was increasing. The day body by also day. grows. So then the body required. So then I started shifting. There wasn't के पहले दिन जो दिन I Like- stepped into the gym. 3 years ago you might be around 18-19. Abhi now you are 21. 21. So naturally you are also grown at this phase. So you definitely you need more food, more proper food intake. Bro, you have mentioned ki family also, like your mom, she makes sure that your diet is family ka support, and what are the other challenges? See, the major challenges for a sports person generally is कि देखो, एक तो जो बंदा स्पोर्ट खेलता है उसको पूरे दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता. So the major problem is, एक तो आपका social life ज़्यादा नहीं होता है. You don't have True. much friends. Then even your personal life is being affected. Plus this thing major why Indian parents don't let you play sports is कि भाई पढ़ाई कर, पैसे कौन कमाएगा. Exactly. So, Responsibilities are there. हाँ, the biggest challenge is supporting parents. कि आपको फिर financial problems है. And now these days cricket is so expensive. That's coming over. You just buy a cricket kit, it will cost you what? There's no limit only in terms of the money. Exactly. You can have the best out of the best equipments, but naturally the price will also go high. So वो होता है. Age is I feel the biggest problem when it comes Criteria. to sports. This age बढ़ रहा है, you're getting older, 19, 20. Your relative, even your parents would ask you now, भाई तू 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, And you क्या will see काम करेगा? Vaibhav Suryavanshi.
on paper 14-15 year old smashing हाँ bowlers, वो भी एक आ जाएगा, अरे यार ये तो बहुत जल्दी किया ब्रो, तू तो लेट हो गया, वो भी ऐसा भी आता रहेगा. वो भी होता है. See, there are comparisons every now and then. Even Exactly. at home, even I still get some comparison even from my this thing कि यार ये कर रहा है, तू क्या Who, कर रहा है. like My parents relative also, parents? relatives also. Can you share some examples? Like for example, there's someone probably he's doing a job and at my age he's earning let's say 20,000 a month, and what am I doing? I'm not earning. I have no job right now, for example. So then your parents would ask you, right? See, this guy is earning at the वो शर्मा जी का बेटा 21 साल की उम्र में हाँ 20 वो भी साल है, वो 20 भी है. हजार की नौकरी कर रहा Got है it, और got तू it, क्या got कर it. रहा है. Got it. So you know that's the thing. Age, family, these things are a big this thing, and along with that then the social life, personal life, these all adds up. And you also feel ना at a point, अरे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और ये सब सुनने को मिल रहा है. हाँ, और उसमें भी वो सुनने आपको कब मिलेगा पता है? आप घर पे आके बोलोगे ना यार आज 0 पे आउट होके आ गया, यार तभी ये तो wicket डबल नहीं आया. होएगा. तब आप खुद को भी गिल्ट में डालोगे और तब आपका माइंडसेट है ना, एक वो दिन तो इतना बुरा होगा, आपको लगेगा यार उससे अच्छा तो मैं काम धंधे पे लग जाऊँ, पढ़ाई करूँ, समथिंग व्हिच आई एम गुड एट बट आई एम नॉट डूइंग प्योरली बिकॉज आई वांट टू प्ले. Because you are passionate about it. ऐसा भी हुआ रहेगा ना कभी कि इन केस लाइक अभी यू मेंशन कि 0 पे आउट, तो 0 पे आउट होता है तो उल्टा तो यू आर वेरी एंग्री विथ योर सेल्फ पर्सनली, एंड यू विल बी लाइक कि अरे अगली बार जाने का है ना, अगली बार ये वापस नहीं होना चाहिए. बट दैट्स ऑल्सो इनएविटेबल. वो आप यू नो वो पर्टिकुलरली यू कैन से क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर. हाँ हाँ हाँ, देखा जाए तो बैट्समैन जो सेंचुरी मारा आज, ही विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. अगले दिन वो zero अगले पे मैच out 0 होता पे आउट होएगा, ही विल फील द लोएस्ट. है. राइट, ट्रू. वो भी एक है. दिस गेम इज ऑल्सो अलग 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 उसके मोड डेज होते हैं. दिखाता है हाँ आपको हाँ कि हाँ. और दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट कि आपको लाइफ ये दिखाए उसके बाद आपको स्पोर्ट्स दिखा देता है, सो यू आर रेडी फॉर एग्जैक्टली. नॉट ओनली क्रिकेट, बाकी हाँ, के भी any बहुत sport I'm स्पोर्ट्स saying है, यार. बहुत स्पोर्ट्स है. एनी स्पोर्ट यू प्ले आपको अपने भाषा रियलिटी में चेक दे देता औकात है, दिखा देता है. रियलिटी चेक दे देता है हाँ, एज वेल. वो ही औकात पता चल जाता पता है चल जाता कि है. हाँ ऐसा भी हो सकता है. होता ही है. और वो आप समझो ना, वो दिन 0 पे आउट हो गए, देखा वही दिन है ना आपके कोई दोस्त आ गए या कोई गेस्ट आपके घर पे आगे रहेंगे अरे और आप बैग बाप किड बैग रे. लेके आप घर जा रहे हो और बेटा कैसा और गया, कैसा, और उनको पता नहीं होगा आपने क्या एंड दे किया विल, है. और वो लोग नाम वाम दे दे, अरे तेंदुलकर आ गया. हाँ, अरे आईपीएल की टिकट तो ला. वाह ये वो भी एक है. रिलेटिव तो दे विल जस्ट कम अप टू यू एंड आस्क के भाई टिकट दे दे. Also, the fact is कि बट you दैट will, इज इंस्पायरिंग. you might not see, you might not think such so far, but they'll be like अरे अरे टिकट चाहिए. नहीं तू खेलेगा मानते तभी. हैं. माय फ्रेंड्स इवन लाइक कब तक खेल रहा है आईपीएल, लाइक तुम्हें मजाक लगता है? मतलब ऐसे ही. अरे बीच में मैं ही तो मस्ती करता था तेरे साथ, हाँ. भाई ऑक्शन में कब आ रहा है नाम. तो वो ऐसे ही होता है और वो तो है. सब क्रिकेटर के साथ ही होता है कि आपको बोलेंगे आईपीएल कब खेल रहा है, Because टिकट दे दे. IPL आज के तारीख में it's become a very big thing. जब स्टार्ट हुआ था nobody thought, but आज it's on the next level. या ट्रू. Best T20 league also. हाँ, Also, yes, what do you feel that a particular challenge with which haunts you, but also you feel कि it's improving your personality, your game, vice versa. like in terms of sports you're saying or just in general? ना like something definitely that it bothers you, but at the same time you realize कि नहीं ये मेरे को इंसान भी अच्छा बनाएगा and a player also I'll improve like that. वो फियर ही हटना चाहिए आपको यार. आई फील वो फियर हट जाए ना कि ठीक है इफ आई डोंट मेक इट अप तो क्या हो गया, फिर तो कभी नहीं होएगा. मतलब वो आप दिमाग में रख के चलोगे ना कि यार नहीं होएगा, मुझसे नहीं होएगा. दैट इज समथिंग कि वो मैंने चेंज कर दिया. नाउ आई प्ले जस्ट टू यू नो Enjoy the game. Now I don't have a strict thing called कि I have to make it up to this level and do it. I have only this much years left to play. I have to reach at this level. भले सब बोल रहे हैं कि और ये लेवल पे खेलना है ये.
अब वो हट गया है Shut the मेरा, outside noise and do what? अब वो मैंने जब से कर लिया ना तब से I've started enjoying my practices also. Exactly. I've started enjoying my game also. So that is one challenge कि earlier I used to take a lot of pressure from the outside world. अरे मेरे को प्रूफ करने Proof का है. करना है या डैड मॉम ने इतना किया है तो चलो now, वो like- दिखाना है. Like as you mentioned कि अभी you don't want to think much कि आगे क्या होएगा. You जैसा वो बचपन में used to go, play. हाँ वैसा वाला फीलिंग वापस आता है. हाँ अभी जाना है प्रैक्टिस पे. कुछ एक चीज मेरे को सीख के निकलना है प्रैक्टिस से. 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटे की प्रैक्टिस में कुछ सीख के बाहर आना है जो मैं इम्प्लाई करूंगा मैच में. Also, I might be wrong over here, but don't you think each and every practice session, like if you're playing today, you learn one thing, tomorrow you will go on the field, you will improve 1% more, right? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि a certain point is troubling you for quite some time, or you get better and better? नहीं ऐसा नहीं होता. There's some saturation point also. See, at the top level everyone is skilled, right? Yes. Indian team में तो आपको एक स्टैंड आउट होने के लिए क्या होता है, अरे आप फिट हो. So there are chances of you coming at a saturation point also, even in terms of your skill. So same now, if I practice some skill, वो मैं इम्प्लाई करने आता तो मैच में नहीं होता है. वो भी है. और वो ट्राई करता हूँ नहीं होता है. Then if I change again कि यार वो नहीं, मतलब if I practice that thing a little more, or if I just change, for example, if it is my backlift, if my backlift is coming from inside, I try to take it from outside, but match में मेरी यहाँ से backlift आ रही है और मुझे फील भी अच्छी आ रही है कि वहाँ से मुझे लगता है मैं शॉट नहीं मार पाऊंगा. तो अब वो क्या हो रहा है, रेपिटेशन और मसल मेमोरी हो गया. आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा टू चेंज दैट थिंग. तो वो इम्प्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ. और ट्रिगर मूवमेंट्स का व्हाट डू यू थिंक, अ पर्टिकुलर ट्रिगर मूवमेंट या फिर नहीं, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. कैसा अभी क्या फील आ रहा है वैसा. हाँ, यू बैट के वो दिन आपको गए विकेट पे पहली बॉल कैसी बैट पे लगी ना, उसके बाद आपको फील आ जाता है कि वो भी ऐसा भी रहेगा ना कि विच सिचुएशन आल्सो आर कमिंग टू बैट. हाँ, टीम फंसी हुई है तो फिर अलग ही माइंडसेट. अलग माइंडसेट नहीं, बट हाँ आपको क्या कैसे चेस करना है. कोच आता रहेगा या कैप्टन आता रहेगा और बोलता रहेगा किसी सी ऐसा करना वो है. टाइम पे अगर समझो कोई मैच फंसी हुई है आपकी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर चेजिंग, सो व्हाई पीपल कॉल विराट कोहली चेस मास्टर. the chase master, just because he's fit. You know, for me, a definition of a fit player is, you know what, not he has 6-pack abs or he is jacked or whatever. कि अपने tough situation जब वो physically tired है, when you're physically tired now you mentally stop thinking. Exactly. When you stop thinking, that means you're unfit. For me, I feel कि a fit person is who can make decision at the time when he is physically Fatigued drained out. And that's when Virat Kohli जब 80 रन पे खेला, मतलब वो बहुत थका हुआ रहेगा, he's sweating, but still he is able to calculate कि यार अब 20 बॉल में मुझे 40 बनाना है. यार बट ये लॉजिक रोहित पे भी अच्छा फिट होता है. और रोहित फिजिकली तो फिट नहीं है, बट देन टू खेलता भी लाइक इवन ही इज अ कैप्टन आल्सो. तो वही हो गया ना, माइंड फिट. यू नीड फिट प्लेयर, दैट मींस नॉट कि ही इज chiseled, he has 6-pack मेंटली फिट, फिजिकली एंड मेंटली फिट. if you are physically fit, there are high possibilities of you being mentally fit also. But making decisions at the time when you are physically drained, that's a I'm big saying challenge. why Bumrah is someone we call कि भाई बहुत अच्छा है, वो 15 ओवर 18 ओवर डालने के बाद कोई भी थक जाएगा. True. But still he mentally is there. So he then दिमाग आपका चलता है कि अब मुझे क्या प्लान करना है. अब फिर से आया, अब मैं समझो 15 ओवर डालो, उसके बाद आप थक जाओगे पूरा का पूरा. फिर आप बस सोचोगे कि भाई बॉल डालनी है. अगर विकेट बैट्समैन दे रहा है तो देगा, वरना मैं नहीं ले पाऊंगा. तब आप अगर फिट हो ना तो मेंटली यू स्टार्ट थिंकिंग इसका वीक पॉइंट, अभी फिर से आप याद करोगे इसका वीक पॉइंट क्या है. और आप याद तभी करोगे जब आप फ्रेश होते हो, तब आपको सब याद रहता है. डगआउट से कभी इनपुट्स आता है? हाँ, वो तो हर सेकंड पे आता है. हर सेकंड? हाँ, मतलब योर टीममेट्स विल स्क्रीम के ये शॉट मत खेल, या आप एक बार बीट हो गए तो ओए सीधा बैट से खेल ले, 6 मारने. और डगआउट से मतलब यानी कि कोच प्लेयर्स एंड कोच से ब्रेक के बीच में आते हैं. समझो कोई सिचुएशन में आप फंस गए हो कि कम बॉल में ज्यादा रन कैसे करने, क्या करना है, तो कोच का इनपुट आएगा.
if the player is only playing very slow और मैच वो उल्टा प्लेयर ही फंसाने वो कर रहा है, उसके बैट पे नहीं लग रही है वो दिन, तो कोच का कुछ इनपुट आएगा. दिस इज अ क्विज, ओके. अभी इसमें कुछ प्राइज वाइज तो नहीं मिलने वाला है, बट वो एक विनिंग डोपामिन स्पाइक आ जाएगा. ठीक है, चलो. चलो, आई विल कीप दिस आईपीएल वाला. Who are the 3 captains MS Dhoni has played under in IPL? In IPL, Yes, you will give me option. No, तीन है ना. 3 नाम है. You have to pick. I have to say 3 name ना. Yeah, 3. One, Steve Smith. Yes. Correct. Second, Ashwin. No. Ashwin नहीं. अभी recent कैप्टन कौन है? करे गायकवाड़. गायकवाड़ है. मैं वो एक ही मेन नाम जो मैं. चल, I'll give you a hint. Okay. वो he was about to leave CSK after getting captain. यहाँ का है कि इंडियन है. He was about to leave CSK जब उसको हटाया कैप्टनसी से. करंट लॉट नहीं है ये. He won them the trophy the following year in 2023. 2023. अरे यार. Guess. He was sacked as the captain. Okay. The following year. MS gets in. Then rumors come out कि he's gonna leave the franchise. Removes social media post with CSK. And the following year he gets Jadeja. Yes. Jadeja. 3. एक नाम और एक आई नेम अजिंक्य रहाणे. अजिंक्य रहाणे also. आरपीएस में था ना 2017. हाँ. स्मिथ wasn't away. चल, एक आखिरी सवाल रखते हैं. Which bowler has the best bowling figures in an IPL match वो तो easy for है. Mumbai Indians? अलजारी जोसेफ 6 विकेट लिया. That's it for the day. Well, that's it, brother. It was a pleasure having you with us. Thank you. Same here, buddy.